Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, in this video lecture, we are going to define allied angles and trigonometric ratios of different allied angles. If we have a basic angle theta, let's say this theta is a basic standard angle, here, let's say this is the rectangular coordinate axis, this is x-axis, and this is y-axis. Now let's say this is the basic angle theta, basic standard angle theta. If we subtract this basic angle theta from right angle mean 90 degree or pi by 2 radian, or if we subtract this basic angle from the multiples of the right angle, that are 180 degree, 270 degree and 360 degree, that can be written as pi radian, 3 pi by 2 radian, 2 pi radian. If we subtract the basic angle from these angles, or if we add the basic angle with these angles are actually right angles or the multiples of right angle. If we multiply right angle by 2, so we get 180, multiplied by 3 the right angle, you get 270. If you multiply the right angle by 360, we get with 4, so we get 360 degree. So अगर आप थीटा को एड या सब्ट्रैक्ट कर ले, देट इज अ बेसिक एंगल विद राइट एंगल या इनके मल्टीपल्स के साथ, ये आप देख लें, सो देट विल बी दी अलाइड एंगल्स. तो ये जो आपके पास एंगल्स है इनको हम कहते हैं allied angles. So in this video lecture we will discuss the trigonometric ratios of allied angles. Okay, now before to discuss the proper definition of the allied angles, previous video lecture के अंदर हमने trigonometric ratios को discuss किया था, that are the trigonometric identities for the sum and difference of angles, and all those trigonometric identities are derived from the fundamental law of trigonometry. You know, fundamental law of trigonometry is cos alpha minus beta. That is actually the trigonometric identity for the difference of angle alpha minus beta. Cos alpha minus beta is equal to cos alpha cos beta plus sin alpha sin beta. We derived that in the previous video lecture, and with the help of that we deduced different trigonometric identities, that are sin alpha plus beta, sin alpha minus beta, cos alpha plus beta, tangent alpha plus beta, tangent alpha minus beta. So these five along with the fundamental law of trigonometry, these 6 trigonometric identities are the trigonometric identities of sum and difference of angles, which is the title of this chapter number 10. So we discussed that in previous video lecture. Cos alpha minus beta, that is equal to cos alpha cos beta plus sin alpha sin beta. That is the fundamental law of trigonometry, and from this we deduce these 5 trigonometric ratios. sin alpha plus beta sin alpha cos beta plus sin beta cos alpha. अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस होगा. यहाँ पे cos अल्फा प्लस बीटा, cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा के बराबर होता है. यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा. टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा. अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस होगा और फिर नीचे आपके पास प्लस होगा. दैट इज़ द डिफरेंस. सो इन ये जो आपके पास trigonometric identities आप देख रहे हैं, these are the trigonometric identities of sum and difference of angles, because you see that there here is the angle is difference of angles, यहाँ पे sum of angles है, sum of angles, difference of angles. तो ये हमने लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर इन चीज़ों को डिस्कस किया हुआ था. इसके साथ साथ ये याद रख लें कि 2 पाई रेडियन हमारे पास 360 डिग्री 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन इसके बराबर होती है. यहाँ पे कुछ एंगल्स हैं, उनकी साइन कोसाइन और टेंजेंट
आपको मालूम होने चाहिए। साइन 0 डिग्री हमारे पास 0 के बराबर होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 के बराबर होता है, साइन 45 डिग्री 1/√2 के बराबर होता है, साइन 60 डिग्री हमारे पास √3/2 के बराबर होता है, साइन 90 डिग्री 1 के बराबर होता है, साइन 180 डिग्री 0 के बराबर होता है 0, एंड साइन 270 डिग्री -1 के बराबर होता है, और साइन 360 डिग्री हमारे पास 0 के बराबर होती है। सिमिलरली कोसाइन मीन कास, कोसाइन को हम कास कहते हैं COS। सो ये 0 डिग्री 1 के बराबर होती है, 30 डिग्री √3/2 के बराबर होती है, 45 डिग्री हमारे पास यहाँ इस केस में बराबर होती है 1/√2। यू सी दैट साइन 45 एंड कास 45 आर इक्वल। साइन कास 60 डिग्री हमारे पास 1/2 के बराबर होती है, कास 60 डिग्री 1/2, कॉस 90 डिग्री 0 होता है, कास 180 डिग्री -1 के बराबर होता है, कॉस या कोसाइन 270 डिग्री हमारे पास 0 के बराबर होती है, और कॉस 360 डिग्री हमारे पास 1 के बराबर होती है। अब आपने अगर टेंजेंट या कोटेंजेंट या सीकेंट या कोसीकेंट इन एंगल्स का फाइंड करना है तो देट जस्ट बी कैलकुलेटेड फ्रॉम साइन एंड कास। टेंजेंट तो टेंजेंट साइन बाय कास होता है, तो 0/1, सो टेंजेंट 0 आपके पास 0 के बराबर होगा, टेंजेंट 30 डिग्री 1/√3 के बराबर होगा, टेंजेंट 45 डिग्री 1 के बराबर होगा, टेंजेंट 60 डिग्री आपके पास √3 के बराबर होगा, टेंजेंट 90 डिग्री अनडिफाइन होता है, दैट इज प्लस इन्फिनिटी, टेंजेंट 180 डिग्री आपके पास 0 के बराबर होगा, टेंजेंट 270 डिग्री आपके पास माइनस इन्फिनिटी के बराबर होगा, और टेंजेंट 360 डिग्री आपके पास 0 के बराबर होगी। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ आपको कम से कम याद होनी चाहिए फॉर सॉल्विंग डिफरेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो ये हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया था। 2 पाई रेडियन 360 डिग्री के बराबर है, तो पाई रेडियन आपके पास 180 डिग्री के बराबर होगा, पाई/2 रेडियन आपके पास 90 डिग्री के बराबर होगा, पाई/3 रेडियन आपके पास 60 डिग्री के बराबर होगा, पाई/4 दैट इज़ 45 डिग्री, पाई/6 ये आपके पास बराबर होगा 30 डिग्री के, और पाई/12 ये आपके पास बराबर होगा 15 डिग्री के। तो ये आपको याद होनी चाहिए। बाज़ औक़ात क्वेश्चंस में पाई या पाई/2 या 5/3 या पाई/4 इसी तरह के होंगे, तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि पाई 180 डिग्री है, तो उसकी मदद से हम उन रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये भी आप याद रख लें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अगर आप रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन लेते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास एंगल 0 डिग्री टू 90 डिग्री ये आपके पास ओपन इंटरवल होता है। तो यहाँ पे आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती हैं। यहाँ आपके सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एंगल होता है 90 डिग्री से 180 डिग्री तक, तो यहाँ पे आपका साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा। यहाँ पे एंगल्स आपके पास होते हैं 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में से थर्ड क्वाड्रेंट में, यहाँ पे टेंजेंट और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है। और यहाँ पे आपके पास एंगल्स 270 से लेके 360 डिग्री तक ओपन इंटरवल में एंगल्स होते हैं। और यहाँ पे आपका कोसाइन कास, जिसको हम कास कहते हैं, वो और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, सो दैट्स वाई वी नो इफ़ वी कंसिडर अ यूनिट सर्कल, जिस तरह हमने पिछली वीडियो लेक्चर में किया हुआ था कि यूनिट सर्कल कंसिडर कर ले विद रेडियस 1, तो उस केस में आपके पास x साइन थीटा के बराबर था और x आपके पास कॉस थीटा के बराबर था और y आपके पास साइन थीटा के बराबर था। सो अगर x और y दोनों ग्रेटर है तो तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पॉजिटिव होंगे। यहाँ x लेस देन 0 और y ग्रेटर देन 0, सो y आपके पास साइन थीटा से रिलेटेड होता है इफ थीटा इज़ द बेसिक स्टैंडर्ड एंगल। तो यहाँ पे साइन और उसका रेसिप्रोकल जो है वो पॉजिटिव होंगे। यहाँ पे x लेस देन 0 और y लेस देन 0, तो जब आप नेगेटिव को डिवाइड करते हो तो दैट इज़ काज एंड दैट इज़ साइन, सो आपके पास टेंजेंट जो मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। तो यहाँ पे टेंजेंट और टेंजेंट का रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है। यहाँ x ग्रेटर देन 0 और y लेस देन 0 होता है, x ग्रेटर देन 0 और y लेस देन 0। तो अगर x ग्रेटर देन 0 है सो इट मीन्स दैट काज यहाँ पे जिसको हम कोसाइन कहते हैं वो आपके पास पॉजिटिव होगा।
So we discussed all these things in previous video lecture. Now we are going to discuss formally the definition of allied angle. Okay, allied angle की तरफ आप जाते हैं. ये आप देख लें, the angles of the measure pi by 2 plus minus theta, pi plus minus theta, 3 pi by 2 plus minus theta and 2 pi plus minus theta. So actually pi by 2 is 90 degree, राइट एंगल इसको हम कहते हैं. तो ये राइट एंगल के साथ बेसिक एंगल ऐड हो रहा है या राइट एंगल से बेसिक एंगल को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. तो जब भी मैंने आपको कहा कि आपके पास ये थीटा आपका एक्सटेंडेड बेसिक एंगल है, अगर इसके साथ पाई बाई 2 आप ऐड कर ले या ये बेसिक एंगल आप पाई बाई 2 मीन राइट एंगल से सब्ट्रैक्ट कर ले, या ये बेसिक एंगल राइट एंगल के मल्टीपल से ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाए, तो आप देख सकते हैं कि पाई इज द मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2. ये राइट एंगल का मल्टीपल है क्योंकि 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करने से ये मिलेगा, 3 मल्टीप्लाई करने से ये मिलेगा और 4 मल्टीप्लाई करने से ये मिलेगा. दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 180 डिग्री, 3 पाई बाई 2 इज 270 डिग्री एंड 2 पाई इज 360 डिग्री. तो ये आपके पास बेसिक एंगल के साथ अगर राइट एंगल ऐड हो रहा है या बेसिक एंगल से या राइट एंगल या उनके मल्टीपल से बेसिक एंगल सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सो दोज एंगल्स आर कॉल्ड एलाइड एंगल्स. तो यहाँ नोट में आप देख लें कि द एंगल्स विच आर कनेक्टेड विद द बेसिक angles of measure theta by the right angle or its multiple are known as allied angles. तो ये आपने याद रखने हैं कि ये हमारे पास allied angles हैं. और इसके साथ साथ जिस तरह हमने यहाँ पे डिस्कशन की, अब हम इन allied angles का ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज इनका फाइंड करेंगे. तो ये आप देख लें, दीज आर दी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ allied angles. आपका साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर होगा कास थीटा के और साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा बराबर होगा कॉस थीटा के. तो यू सी दैट पाई बाई 2 माइनस थीटा इज allied angle because theta is the basic angle and that is subtracted from the 90 degree right angle. So that's why this is allied angle. Pi by 2 minus 90, so pi by 2 minus theta is the allied angle. इसी तरह पाई बाई 2 प्लस थीटा जो है ये भी allied angle है क्योंकि आपका बेसिक एंगल थीटा जो है उसके साथ राइट एंगल ऐड हो रहा है. तो यहाँ दीज आर दी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ एलाइड एंगल्स. इनका प्रूफ आप कर सकते हैं बड़े आसानी से फ्रॉम यूजिंग दी फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, या इसके साथ साथ हमने जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज डिस्कस किए, देट आर दी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स. सो वहाँ से आपको पता है कि साइन अल्फ़ा माइनस बीटा आपके पास बराबर है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन बीटा कॉस अल्फ़ा. तो आप इनसे भी इसका प्रूफ कर सकते हैं. सिमिलरली अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे आपके पास प्लस होगा, तो ये दोनों आप यहाँ से भी प्रूफ कर सकते हैं. इसके साथ साथ ये याद रख लें कि जब आपके पास अलाइड एंगल में पाई बाई 2 या 3 पाई बाई 2 इन्वॉल्व हो, ये देखिए एलाइड एंगल में यहाँ पे पाई बाई 2 इन्वॉल्व है या 3 पाई बाई 2 अलाइड एंगल के अंदर इन्वॉल्व हो, तो उस केस में साइन जो है वो कन्वर्ट होगा कोसाइन मीन काज में, कोसाइन कन्वर्ट होगा साइन में, टेंजेंट आपके पास इस केस में कन्वर्ट होगा कोटेंजेंट में, आपका कोटेंजेंट कन्वर्ट होगा टेंजेंट में, सीकेंट कन्वर्ट होगा कोसीकेंट में और कोसीकेंट कन्वर्ट होगा सीकेंट में. ये आपने याद रखना है. इफ़ एलाइड एंगल जिसका आप साइन कास टेंजेंट कोटेंजेंट सीकेंट कोसीकेंट ले रहे हैं, वहाँ पे आपका पाई बाई 2 या 3 बाई 2 इन्वॉल्व हो, तो साइन काज में कोसाइन में चेंज होगा कोसाइन साइन में, टेंजेंट कोटेंजेंट कोटेंजेंट टेंजेंट, सीकेंट कोसीकेंट और कोसीकेंट सीकेंट में चेंज होगा. तो इसी वजह से आप देख सकते हैं कि साइन यहाँ पे पाई बाई 2 एलाइड एंगल के अंदर इन्वॉल्व है, तो ये साइन काज में चेंज होगा. आप देख सकते हैं कि ये साइन काज में, और इसका प्रूफ आप यहाँ से कर सकते हैं इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज फॉर सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स. ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, ये 1 2 आपके पास ये हैं, एक आपका ये है और 2 आपके पास ये हैं. सो ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज
फॉर सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स हैं, इनसे आप तमाम एलाइड एंगल्स की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का प्रूफ फाइंड कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे उसको याद रखने के लिए ये बात आपकी जहन में होना चाहिए कि अगर अलाइड एंगल के अंदर π/2 या 3π/2 इन्वॉल्व है तो साइन काज में, कोसाइन साइन में, टेंजेंट को टेंजेंट में, कोटेंजेंट टेंजेंट में, सीकंड को सीकंड में और कोसीकंड सीकंड में चेंज होगा। ये बात आपको याद होना चाहिए। और अगर आपके पास यहाँ पे इस एलाइड एंगल के अंदर पाई या 2π ये इन्वॉल्व हो तो वहाँ पे आपका साइन चेंज नहीं होगा। अगर आपका जो फंक्शन साइन है ना, ये साइन ही रहेगा। अगर आपका टेंजेंट है वो टेंजेंट ही रहेगा। मीन आपका फंक्शन चेंज नहीं होगा अगर अलाइड एंगल के अंदर आपके पास ये 90 के मल्टीपल्स इन्वॉल्व हो। और अगर आपके पास राइट एंगल या 3π/2 270 डिग्री इन्वॉल्व हो तो उस केस में ये आपके पास साइन कोसाइन में चेंज होगा, कोसाइन साइन में, टेंजेंट को टेंजेंट में, कोटेंजेंट टेंजेंट में, सीकंड को सीकंड में और कोसीकंड सीकंड में। आप यहाँ पे अब देख लोगे। अब देख लें यहाँ पे कोसाइन दैट इज कॉस π/2 माइनस थीटा इज साइन थीटा। क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री इन्वॉल्व है तो याद रखने के लिए आपके पास π/2 या 3π/2 जब इन्वॉल्व होंगे तो काज साइन में चेंज होगा। और इसकी प्रूफ के लिए आप फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री काज अल्फा माइनस बीटा दैट इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा को यूज करके इसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं। लेकिन π/2 इन्वॉल्व है सो दैट्स वाई याद रखने के लिए काज साइन में चेंज होगा। यहाँ पे भी दैट इज π/2 माइनस थीटा इज अलाइड एंगल, π/2 प्लस थीटा इज आल्सो अलाइड एंगल। इसका आप काज ले रहे हैं तो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है अलाइड एंगल का, तो ये माइनस थीटा के बराबर होगा। क्योंकि यहाँ पे काज है तो ये साइन में चेंज होगा क्योंकि यहाँ पे π/2 है। और ये माइनस इसके साथ आएगा क्योंकि काज अल्फा प्लस बीटा काज अल्फा काज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे साइन 90 π/2 जिसको हम कहते हैं रेडियन के केस में तो वो आपके पास 1 के बराबर, और कॉस 90 डिग्री 0 के बराबर, तो वो आप यूज़ करके इसका प्रूफ फाइंड कर सकते हैं। तो इन सिमिलर पेशन यू सी दैट टेंजेंट π/2 माइनस थीटा कोटेंजेंट थीटा, क्योंकि अब देख ले π/2 इन्वॉल्व है तो ये कोटेंजेंट में, टेंजेंट π/2 प्लस थीटा माइनस कोटेंजेंट के बराबर होगा। इसका प्रूफ आप कर सकते हैं। आपको पता है कि टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, दैट इज टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। और अगर यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस होगा और ये आपके पास प्लस होगा। तो ये प्रूफ आप कर सकते हैं। तो ये भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है अलाइड एंगल की, क्योंकि बेसिक एंगल थीटा सब्ट्रैक्ट हो रहा है 90 से। बेसिक थीटा एंगल जो थीटा है दैट इज एडेड टू दी 90 राइट एंगल। सो ये आपके पास टेंजेंट आप देख सकते हैं कोटेंजेंट में चेंज हो रहा है, क्योंकि ये बात मैंने आपको रिपीट करवाई। अब देख ले साइन, तो साइन साइन ही रहेगा। ये देखिए याद रखने के लिए सिर्फ ये स्टेप आपको, क्योंकि आपके पास एलाइड एंगल के यहाँ पे जो एंगल है उसमें आपके पास फाई 180 डिग्री इन्वॉल्व है। तो जब 180 डिग्री या 2π इन्वॉल्व होगा मीन 360 डिग्री, तो वहाँ पे आपका फंक्शन चेंज नहीं होगा। साइन है फंक्शन तो साइन ही रहेगा। और इनके प्रूफ के लिए आपको पता है कि साइन अल्फा माइनस बीटा बराबर होता है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा। तो उनको आप यूज़ कर सकते हैं। Trigonometric identities for sum and difference of angle will be used for the proof of all trigonometric ratios of allied angle। तो यहाँ पे कास ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे आपके पास पाई है। सिमिलरली ये आप देख सकते हैं कि ये तमाम आपके पास 12 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है एलाइड एंगल्स के। आप देख ले यहाँ पे साइन 3π/2 है, 3π/2, तो ये कास में चेंज होगा क्योंकि मैंने आपको बताया कि एंगल के अंदर अगर आपका π/2 या 3π/2 होगा तो साइन कास में, आपका टेंजेंट को टेंजेंट में, आपके पास जो सीकंड होगा वो कोसीकंड में और कोसीकंड सीकंड में चेंज होगा। तो ये आपके पास 12 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप एलाइड एंगल्स है। ये तमाम एंगल्स, यहाँ जो तमाम एंगल्स है दीज आर एलाइड एंगल्स, क्योंकि आपका जो बेसिक एंगल थीटा है वो या 90 या उसकी मल्टीपल से सब्ट्रैक्ट हो रहा है या उनके साथ ऐड हो रहा है। तो ये तमाम के तमाम आपके पास क्या है, दीज आर दी एलाइड एंगल्स। और ये एलाइड एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन काज और टेंजेंट है। अब साइन काज और टेंजेंट के जो रिसिप्रोकल्स हैं
आया इनकी रेसिप्रोकल्स पे ये एलाइड एंगल्स सही होंगे या सही नहीं होंगे। तो बिल्कुल ये तमाम के तमाम जो एलाइड एंगल्स आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन काज और टेंजेंट हैं, ये सीकेंट कोसीकेंट और कोटेंजेंट के लिए भी सही होंगे। अगर मैं यहाँ पे ये ले लूँ, यहाँ पे इसको रेसिप्रोकल करवा देता हूँ कि कोसीकेंट पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा, तो ये आपके पास सही होगा क्योंकि आपके पास कोसीकेंट 1 बाय साइन होता है। कोसीकेंट इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, कॉज इज सीकेंट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, कोटेंजेंट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट। तो इसको आप ऐसे लिख ले। अब देखिए ये 1 और ये हमें पता है फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल, हियर इज द डिफरेंस ऑफ एंगल पाई बाय 2 माइनस थीटा एंड पाई बाय 2 माइनस थीटा इज अलाइड एंगल। तो साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, यहाँ पे ये साइन अल्फा प्लस माइनस बीटा, तो वो होता है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा। तो ये देख ले 1 और ये है साइन 90 डिग्री 1 के बराबर होती है और कॉस 90 डिग्री 0, सो देट इज कॉस थीटा और यहाँ पे माइनस ये 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगी ये 0 और 1 बाई कॉस थीटा आपके पास होती है सीकेंट थीटा। तो आप क्लियर कट देख सकते हैं कि ये आपके पास जो साइन का रेसिप्रोकल है कोसीकेंट के लिए भी ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एलाइड एंगल इज ट्रू। सो सिमिलरली all these trigonometric ratios of the allied angles will also be true for the reciprocal of sine, cos and tangent that are cosecant, secant and cotangent respectively। तो ये इनके लिए भी आपके पास ये सारा सब कुछ सही होगा। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये दो बातें, इनको तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल्स को याद रखने के लिए ये बात आपके जहन में होनी चाहिए कि जब ये यहाँ से आप देख लें कि इफ़ वी हैव पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 इन द फार्मूला चेंजेस साइन टू कोसाइन एंड कोसाइन टू साइन, टेंजेंट टू कोटेंजेंट एंड कोटेंजेंट टू टेंजेंट, सीकेंट टू कोसीकेंट एंड कोसीकेंट टू सीकेंट। और अगर आपके पास पाई बाई 2 पाई या 2 पाई हो तो वहाँ पे फंक्शन चेंज नहीं होगा। इसके साथ साथ ये तमाम रिजल्ट जो आप लोगों ने यहाँ पे देख लिए, ये तमाम रिजल्ट ये आपके पास द अबव रिजल्ट्स आल्सो अप्लाई टू द रेसिप्रोकल ऑफ साइन कोसाइन एंड टेंजेंट। ये बात मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। ये भी आप लोग को एक्सप्लेन करवा चुका हूँ कि यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर यहाँ पे आपका एंगल 0 डिग्री या 360 डिग्री होता है, तो साइन 0 0, साइन 360 आपके पास 0, कास 0 1, कास 360 1। ये देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं और यहाँ पे एंगल आपका 0 से 90 डिग्री या 0 टू पाई बाई 2 रेडियन इसके बीच में होते हैं, ये ओपन इंटरवल हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स लेस देन 0 वाई ग्रेटर देन 0 आपका एंगल पाई बाई 2 और पाई ओपन इंटरवल या 90 या 180 डिग्री टू 180 डिग्री ओपन इंटरवल। साइन और इसका रेसिप्रोकल मीन कोसाइन वो आपके पास पॉजिटिव होते हैं। साइन और कोसीकेंट कोसाइन इज एक्चुअली कास, तो साइन और कोसीकेंट पॉजिटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव एंगल आपके पास इसके बीच में होते हैं, पाई 3 पाई बाई 2 मीन 180 और 270 डिग्री। टेंजेंट और इसका रेसिप्रोकल को टेंजेंट पॉजिटिव होगा और यहाँ पे आपका काज और उसका रेसिप्रोकल जिसको हम कोसाइन और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट ये आपके पास पॉजिटिव होंगे। ओके, इसके साथ साथ ये बातें आप लोग के साथ डिस्कस की कि इफ़ वी हैव फाई आर 2 पाई इन द फार्मूला द फंक्शन डज नॉट चेंज। आप यहाँ से क्लियर कट देख सकते हैं कि अगर आपके पास पाई है तो फंक्शन आपका चेंज नहीं होगा, पाई है तो फंक्शन चेंज, साइन है तो साइन ही रहेगा, टेंजेंट है तो टेंजेंट ही रहेगा। आप देख लें आपका साइन यहाँ पे 2 पाई तो यह साइन ही रहेगा, टेंजेंट 2 तो साइन टेंजेंट ही रहेगा, यहाँ पे कास 2 पाई तो कास ही रहेगा। तो ये हमने आपके साथ डिस्कशन कर दी। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 दैट इज़ इंक्लूडेड इन द एक्सेलरेटेड कोर्स। उस एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या है, आपका एक ट्राइंगल है, आप देख सकते हैं अल्फा बीटा आर द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC। आपका एक ट्राइंगल है यहाँ पे, लेट्स से दिस इज अ ट्राइंगल ABC।
इसमें ये एंगल अल्फा, लेट्स से दैट एंगल इज बीटा एंड दैट एंगल इज गेमा। तो आप सबको पता है कि द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये आपका जो रिजल्ट है इसको मैं यूज़ करूँगा। यू नीड टू प्रूव दीज टू पार्ट्स। आपने साबित करना है कि टेंजेंटल पार्ट प्लस टेंजेंट बीटा प्लस टेंजेंट गेमा दैट इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा मल्टीप्लाइड बाय टेंजेंट बीटा मल्टीप्लाइड बाय टेंजेंट गेमा। और सिमिलरली आपने ये रिजल्ट प्रूव करना है कि टेंजेंट अल्फा बाय 2 टेंजेंट बीटा बाय 2 प्लस टेंजेंट बीटा बाय 2 टेंजेंट गेमा बाय 2 प्लस टेंजेंट गेमा बाय 2 टेंजेंट अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 1। तो इन दोनों रिजल्ट को प्रूव करने के लिए बड़ा आसान है। आप क्या कर लें, आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा 180 डिग्री के बराबर होगा, बिकॉज these are the angles of a triangle and the sum of the three angles of a triangle is always equal to 180 डिग्री। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा ये क्या होगा, ये आपके पास बराबर होगा 180 डिग्री माइनस गेमा के। अब दोनों साइड्स पे आप टेंजेंट ले लें, तो टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा दैट विल बी टेंजेंट 180 डिग्री माइनस गेमा होगा। और आपको पता है कि टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल दैट इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। और ये आप इस पे भी आप टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा, वो यूज़ करके यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ अगर आप देख ले दिस इज एलाइड एंगल, दिस इज एलाइड एंगल, क्योंकि आपका गेमा जो है दैट इज द बेसिक एंगल और वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है पाई से, मीन 180 डिग्री दैट इज द मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। पाई बाई 2 को 2 मल्टीप्लाई करने से आपको 180 डिग्री मिलती है ना, पाई रेडियन आपको मिलता है। सो दैट इज एलाइड एंगल। और ये आपको याद होना चाहिए कि टेंजेंट पाई माइनस थीटा किसके बराबर होता है। सो टेंजेंट पाई माइनस थीटा याद रख लें कि ये माइनस टेंजेंट थीटा के बराबर होता है। वी डिस्कस दैट इन दी एलाइड एंगल्स। यहाँ आप देख सकते हैं कि टेंजेंट पाई, ओके, टेंजेंट पाई माइनस थीटा, यू सी इट हियर, टेंजेंट पाई minus theta is equal to minus tangent theta. So from the allied angle we can say that यहाँ पे ये टेंजेंट 180 डिग्री माइनस गेमा बराबर होगा माइनस टेंजेंट गेमा के। और यहाँ पे अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो देखिए ये आपका होगा टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा दैट इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट गेमा। और ये देखिए ये वहाँ चला जाएगा तो ये आपके पास ये माइनस टेंजेंट गेमा इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस टेंजेंट गेमा और फिर ये माइनस टेंजेंट गेमा इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा व्हेन यू डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और ये होगा टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा और टेंजेंट गेमा। तो अब आप इसको इस साइड पे शिफ्ट कर लें तो ये टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा प्लस टेंजेंट गेमा इसके बराबर हो जाएगा एंड दैट इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट इन पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 में आपने क्या करना है, पार्ट नंबर 2 में आपने इसको साबित करना है कि टेंजेंट अल्फा बाई 2 एंड सो ऑन दैट इज इक्वल टू 1। तो आपके पास ये रिजल्ट गिवन है, ये रिजल्ट आप देख सकते हैं कि ये रिजल्ट आपके पास गिवन है। तो इसके लिए सिंपल क्या करें, आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा 180 डिग्री के बराबर है, इसको 2 से डिवाइड कर लें तो ये अल्फा बाई 2 बीटा बाई 2 गेमा बाई 2 ये 90 डिग्री के बराबर होगा और अल्फा बाई 2 बीटा बाई 2 ये 90 डिग्री माइनस गेमा बाई 2। और अब दोनों अतराफ में आप क्या ले लें, अब आप ले लें टेंजेंट अल्फा बाई 2 बीटा बाई 2 और यहाँ पे टेंजेंट 90 गेमा बाई 2। सो ये एलाइड एंगल है, ये आपने याद रखना है। और यहाँ पे आप देख ले असल में ये आपके पास है टेंजेंट पाई बाई 2 माइनस गेमा बाई 2, सो देट इज योर थीटा। अब ये टेंजेंट है तो अब ये कोटेंजेंट में चेंज होगा क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या है 90 है, तो ये बराबर होगा कोटेंजेंट गेमा बाई 2। ये आपके पास एलाइड एंगल से ये आपने याद रखना है। या इसका प्रूफ आप टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा दैट इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा से भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पे हम वही यूज़ करेंगे कि टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, इन दिस केस अल्फा इज अल्फा बाई 2 एंड बीटा इज बीटा बाई 2, तो ये होगा टेंजेंट अल्फा बाई 2 प्लस टेंजेंट बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस
टेंजेंट अल्फ़ा बाई 2 टेंजेंट बीटा बाई 2। तो इससे हम इसको करेंगे और ये आपके पास इसके बराबर होगा। अब इसको ये कोटेंजेंट जो है इसको आप लिख ले 1 डिवाइड बाई टेंजेंट गेमा बाई 2 और ये इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आपको अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। तो इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। ये तो आपका नंबर 1 जो हमने रिजल्ट यहाँ प्रूव किया ये इसका है। पार्ट नंबर 2 के प्रूफ को देख लें। पार्ट नंबर 2 में उसी तरह मैंने सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इन 182 से डिवाइड किया हुआ है। ये 2 इन तीनों के नीचे अलग अलग लिख लें। ये आपका गेमा बाई 2 उस साइड पे चला जाएगा। टेंजेंट ले लें तो ये आपके पास एलाइड एंगल है, तो टेंजेंट एलाइड एंगल ये इसके बराबर होगा। यहाँ पे पाई बाई 2 है तो ये टेंजेंट को टेंजेंट में चेंज होगा, ये आपने याद रखना है। वी डिस्कस दैट इन दी एलाइड एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एलाइड एंगल्स। यहाँ पे कोटेंजेंट का रेसिप्रोकल टेंजेंट, तो इसको आप इसी तरह लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आपको अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, नाउ आफ्टर दैट वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इज 10.1 क्वेश्चन 1। आपने लिखना है टेंजेंट 20 डिग्री प्लस टेंजेंट 32 डिग्री डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट 20 डिग्री multiplied by tangent 32 degree, and this part number 6 and part number 5 only included in the accelerated course। इसको आपने सिंगल एंगल में कन्वर्ट करना है। तो आपको इस रिजल्ट का पता है कि टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा दैट इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे अगर माइनस है तो ये टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा। तो ये सारा टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा है और ये टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा है, लेकिन इस केस में अल्फा 20 डिग्री और इस केस में बीटा 32 डिग्री। इस केस में टेंजेंट अल्फा 35 डिग्री एंड बीटा इज 12 डिग्री। तो वो यूज़ करके आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपका ये जो पार्ट 5 और पार्ट 6 है दैट इज कन्वर्टेड इनटू द सिंगल एंगल। 52 डिग्री टेंजेंट के साथ है और यहाँ पे टेंजेंट के साथ 23 डिग्री है, तो सिंगल एंगल में ये कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली आपका क्वेश्चन नंबर 2, इवैल्यूएट द फॉलोइंग एग्जैक्टली। तो अब देखिए साइन पाई बाई 12 180 डिवाइड बाई 12 तो 15 डिग्री। तो अब देखिए इस 15 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, क्योंकि मुझे साइन 0 देखिए साइन काज मुझे और टेंजेंट 0 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री 270 डिग्री और 360 डिग्री पे मालूम है, वो आपको याद होने चाहिए। टेबल मैंने आपके साथ इसी वीडियो लेक्चर के स्टार्ट में शेयर करवाया। तो ये आपका 15 डिग्री इसमें कन्वर्ट। सो नाउ यू सी दैट इज साइन ऑफ द डिफरेंस ऑफ एंगल। तो we use trigonometric identities for the sum and difference of angle. We know that sin alpha minus beta sin alpha cos beta minus cos alpha sin beta के बराबर होता है। तो यहाँ पे sin 60 इसके बराबर, cos 45 इसके बराबर, तो ये वैल्यूज जस्ट पुट करके ये आपके पास sin 15 डिग्री की एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। सिमिलरली टेंजेंट 45 तो टेंजेंट 75 को 30 प्लस 45 लिख ले और फिर आप यूज़ कर ले कि वी नो दैट टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा के बराबर होता है। और यहाँ अल्फा की जगह पे 30 डिग्री और बीटा की जगह 45 डिग्री पुट करके यहाँ से आप एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली टेंजेंट 105 डिग्री, तो यहाँ पे 105 को 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री आप लिख सकते हैं। तो अल्फा की वैल्यू 60 और बीटा की 45 और टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। तो उसको यूज़ करके अब देखिए आपको टेंजेंट 60 डिग्री और टेंजेंट 45 डिग्री, तो साइन 45 और cos 45 इक्वल होते हैं 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 2 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 2। सो दैट्स व्हाई when you divide sin 45 by cos 45 you get tangent 45 and that is equal to 1, क्योंकि 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 2 you always get 1। और टेंजेंट 60 डिग्री, तो आप देखिए साइन 60 डिग्री 1 स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 2 के बराबर होती है और cos 60 डिग्री 1 डिवाइड बाय 2। तो साइन 60 cos 60 को डिवाइड करने से आपको स्क्वायर रूट 3 मिलेगा। तो वो यहाँ आप देख सकते हैं टेंजेंट 5 टेंजेंट दैट इज 5
5 डिवाइड बाय 12, तो पाई की जगह 180, तो पाई मल्टीप्लाइड बाय 180 डिवाइड बाय 12 से 75 डिग्री आएगा। और उसको हमने डिस्कस किया 75 को 45 और 30 में आप लिख के इसके ऊपर टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फॉर द सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल है वो अप्लाई करके यू गेट द रिक्वायर्ड आंसर बाय नोइंग द टेंजेंट एट 45 एंड 30। टेंजेंट 30 आपके पास क्या होगा, देखिए साइन 30 आपका क्या है, साइन 30 आपके पास है 1/2। अब कास 30 क्या है, दैट इज स्क्वायर रूट 3/2। तो इन दोनों को डिवाइड करके आपको जो टेंजेंट 30 मिलेगा दैट इज 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 3, क्यों 2 कैंसिल हो जाएगा। और टेंजेंट 45 1 के बराबर है, क्योंकि साइन 45 और कास 45 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2 के बराबर होते हैं, तो उनको डिवाइड करने से स्क्वायर रूट 2 कैंसिल, यू विल गेट 1। तो वो वैल्यूज पुट करके यू विल गेट कास 15 डिग्री, तो 15 को 45 और 30, और इन पे इस पेपर आप यहाँ पे फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री काज अल्फा माइनस बीटा दैट इज इक्वल टू कॉज अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस, ये आपको याद होना चाहिए। और फिर कास 45 और कॉस 30 साइन 45 और साइन 30 की वैल्यूज आप पुट कर लें। साइन 30 1/2 और कॉस 30 वो स्क्वायर रूट 3/2 के बराबर है। कास 45 साइन 45 बोथ आर इक्वल एंड दैट इज 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ से आप कर सकते हैं। द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इज साइन 7 पाई डिवाइड बाय 12। तो यहाँ पे 7 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिवाइड बाय 12 से 105 आएगा। 105 डिग्री को 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो यहाँ पे साइन अल्फा प्लस बीटा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फॉर द सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल आप अप्लाई करके साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन बीटा कॉस अल्फा। तो यहाँ पे साइन 45 डिग्री 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 2, कॉस 45 डिग्री इज आल्सो 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट टी, एंड साइन 60 डिग्री आपके पास स्क्वायर रूट 3/2 और कॉस 60 डिग्री 1/2 के बराबर होगा। तो यहाँ से इनको आप फाइंड करके पुट करके यू विल गेट दी एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ साइन 105 और साइन 75 डिवाइड बाय 12। सो ये आपके पास एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2 था। वो क्वेश्चन और वो एग्जाम्पल्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ जो एक्सेलरेटेड कोर्स के अंदर इंक्लूड हैं। इससे रिमेनिंग जितने भी थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स और टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो यू मस्ट वॉच द वीडियोज़ लेक्चर्स, और कोई क्वेश्चंस तो आप व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं। थैंक यू।